السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا آج 13th لیکچر ہے اور یہ سورہ انعام کی تقریباً 10 آیات ہیں، آیت نمبر 146 سے 155 تک۔ جس طرح آپ پہلے جانتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ان چیزوں کا جو اللہ تعالیٰ حرام کرتا ہے، اور یہاں پر یہودیوں کے معمول کا بھی بیان ہے کہ وہ کس طرح چیزوں کو حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر لیتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کو ذکر کیا ہے۔ اور کچھ چیزوں کا نام لے کر اللہ نے ان کو حرام قرار دیا ہے۔ مشرکین یہ کیا کرتے تھے کہ جو اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں ان کو تو حلال سمجھ لیتے تھے، جو اللہ کی حلال کردہ چیزیں تھیں ان کو حرام بنا لیتے تھے۔ تو جس طرح آپ جانتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کے اندر جس طرح آتا ہے نا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، تو جب دل جو ہے وہ وہی کو دیکھنے سے عاجز آ جائے، نہ دیکھ پائے، اندھے ہو جائیں، تو پھر آدمی حرام کو حلال سمجھ بیٹھتا ہے اور حرام کو حلال بنا لیتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، آیت نمبر 146 ہے جو آپ کے سامنے یہ موجود ہے کرسر پر، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، میں جو لوگ یہودی تھے حرمنا، ان پر ہم نے حرام کل ذی ظفر، ہر وہ جانور جو ناخن والا تھا۔ تو ذی ظفر ہر ناخن والا جانور سے وہ مراد ہے جن کے پنجے یعنی کہ جو انگلیاں ہیں وہ علیحدہ علیحدہ نہ ہو۔ آپ نے بطخ کو دیکھا ہوگا، بطخ کی انگلیاں آپس میں ملی ہوتی ہیں ایک جھلی کے ذریعے۔ جی واضح ہے، جی دیکھا ہوا بطخ کے پاؤں کو؟ جی سر دیکھا ہے۔ یعنی کہ اس کی انگلیاں علیحدہ نہیں ہوتی، بلکہ انگلیوں کے درمیان نا ایک جھیلی سی گوشت کی تقریباً یعنی کہ اسکن کی یا چربی کی لگی ہوتی ہے، جس سے اس کی انگلیاں پھٹی ہوئی نہیں ہوتی جس طرح ہماری انگلی ہے۔ ہماری ہر انگلی علیحدہ علیحدہ ہے، اس کے درمیان میں کوئی گوشت نہیں ہے کہ وہ مکس اکٹھا ہو جائے۔ تو وہ تمام جانور جن کی انگلیاں پھٹی ہوئی یعنی الگ الگ نہ ہو، ان سے ذی ظفر وہ جانور ہے، جیسے اونٹ ہے، اونٹ کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پاؤں، اس کی انگلیاں اکٹھی ہوتی ہیں، اس طرح بطخ ہے، اس طرح شتر مرغ وغیرہ ایسے جانور۔ تو وہ تمام جانور جن سب کا تو ہمیں علم نہیں ہے، لیکن جو گنتی کے چند جانور اس وقت ذہن میں ہے، جیسے شتر مرغ ہے، یہ بطخ ہے جن کی انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں، فرمایا وہ جانور حلال تھے جن کے پنجے کھلے ہوئے ہوں، یعنی کہ جن کے جس طرح مرغی کو دیکھتے ہیں تو مرغی کے پنجے کھلے ہوئے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے سے ملا ہوا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے یہاں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ یہودیوں نے جو یہ بات مشہور کی ہوئی تھی کہ یہ چیزیں حرام نہیں تھیں، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کوئی چیز حرام نہیں کی سوائے ان چیزوں کے جو اسرائیل یعنی کہ یعقوب نے اپنے پر حرام کی ہوئی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے یہود کا یہ دعویٰ غلط ہے۔ یہ آپ سورہ آل عمران آیت نمبر 93 میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس مضمون کو۔ سورہ آل عمران 4 پارہ اس کا پہلا صفحہ ہے، وہاں پر یہ آیت موجود ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی شریعت میں ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ایسی تھی جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی، اور یہودیوں پر بھی بعض چیزیں حرام تھی۔ تو فرمایا وامن البقری، اور گائے میں سے، والغنمی، اور غنم سے مراد ہے اس کو بکری کو کہا جاتا ہے، بکریوں کے جنس کو، بکریوں کے ریوڑ کو غنم کہا جاتا ہے۔ تو گائے اور بکری حرمنا علیہم شحومہما، ان کی ہم نے ان پہ چربیاں حرام کر دی، یعنی کہ گائے کی چربی بھی حرام تھی اور بکری کی چربی بھی حرام تھی، الا مگر وہ چربی ما حملت جو ہوتی تھی یا جس کو اٹھائے ہوئے تھے، ظہورہما ان کی پشتیں، یعنی کہ وہ چربی حلال تھی جو ان کی پشت پر ہے، اول حوایا یا وہ جو انتڑیوں کے اندر موجود ہے، او محتاط بیزمن یا وہ چربی جو گوشت کے ساتھ لگی ہوئی ہڈیوں کے ساتھ۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے اس چیز کا، جب آپ بکرا ذبح کرتے ہیں تو بکرے کے اندر چربی جگہ جگہ موجود ہوتی ہے، اس کے پشت پر بھی موجود ہوتی ہے۔ اس طرح آپ چکی والا دمبا دیکھتے ہیں، اس کی ساری جو چکی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری چربی سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک یہاں پر ہمیں یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ حلال اور حرام کا اختیار اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ کسی چیز کو حلال قرار دے دے، کسی چیز کو حرام قرار دے دے، یہاں پر عقل کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کون سی چیز بنی نوع انسان کے لیے بہتر ہے، کون سی مضر ہے، یا کون سی اب میں نے ان کو پرمٹ نہیں کرنی اور کون سی پرمیسیبل ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تمام جانور چربیاں گائے میں سے اور بکری میں سے حرام تھی، مگر وہ جو پشت پہ لگی ہوئی ہوں یا جو ان کی انتڑیوں کے اندر موجود ہیں یا ان کی ہڈیوں کے ساتھ ملی ہوئی۔ اللہ اکبر۔
تو ये अल्लाह ताला ने इस वादे कर दिया। इसका मतलब बाकी हर तरह की चर्बी हराम। मगर यहूदी क्या करते थे, वो हीला किया करते थे। और हीला ये करते थे कि हालांकि उन पे चर्बी हराम थी, मगर वो क्या करते थे कि जो बाकी चर्बियां हैं वो जो उनको नजर आती थी, तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ये उनको बर्बाद करे। जब उनके लिए चर्बियों को हराम किया गया तो उन्होंने उन्हें पिघलाया और फिर उनकी कीमत खा गई, यानी कि वो पिघला के समझते थे अभी चर्बी नहीं रही। तो आप बताइए कि ये यहूदियों का हीला दुरुस्त है? अगर चर्बी को पिघला लिया जाए तो चर्बी नहीं रहती कि चर्बी रहती? सर वो वो चर्बी चर्बी वाला ही ऑयल है। बन सकता हाँ वो चर्बी है, तो वो चर्बी है ना। चर्बी को आप पिघला लें तो आप ये गुमान रख लें कि ये अब चर्बी नहीं रही। या आप जिस तरह नाम तब्दील कर लेता आदमी, मिसाल के तौर पर रिबा और सूद का नाम इंटरेस्ट रख दिया जाए, प्रॉफिट रख दिया जाए, तो रहे तो वो रहेगा तो वो सूद का सूद ही। इसका मतलब ये हुआ कि ये यहूद का हीला होता था हलाल को हराम करने का, हराम को हलाल करने का, कि चीज का नाम बदल दो, चीज वही है, नाम उसका तब्दील कर दो। तो अल्लाह फरमाता है कि ज़ालिका जज़यनाहुम बिबग़यहिम, ये हमने उन पर उनको इसलिए एक सजा दी थी कि वो बागी थे, यानी कि अल्लाह ताला के बागी, अल्लाह के रसूल के बागी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और अपनी मर्जी से चीजों को हलाल करना हराम करना, युहर्रिफूनल कलीमा मवाज़ीही यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाहि लियश्तरू बिही समनन कलीला और इन्ना कसीरम मिनल अहबारी वर्रुहबानी लयाकुलूना अम्वालन नासि बिल बातिल व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि। इस तरह की कई आयात हैं। लौला यनहाहुम रब्बानियूना, अल्लाह ने ये भी फरमाया कि इनके बड़े इनको क्यों नहीं रोकते हराम खाने से। अब हराम खाने से कैसे रोक सकते हैं जबकि वो खुद हराम खा रहे हो? तो लिहाजा कानू ला यतना होना अन मुनकर फालूहु, फरमाया वो हराम कामों से मुनकर से रोकते नहीं थे। तो ये एक बहुत बड़ा मुनकर मुसलमानों के अंदर भी आपको पता है मौजूद है। जैसे आजकल कई मुसलमान जो है शराब नहीं पीते या खंजीर का गोश्त नहीं खाते, मगर काफरों के हाथ उसको बेचकर उसकी कीमत खा जाते हैं। ये वही हीला है कि जो हीला यहूदी अख्तियार किया करते थे। वही नाला सादिक, और अल्लाह फरमाता है कि बेशक हम सच्चे हैं, जो हम बात कर रहे हैं जो हमारी तरफ से ये वही आ रही बिल्कुल सच्ची है। यहूदी अपने दावे में झूठे हैं। फरमाया फाइन का जबूका, और अगर इसके बावजूद आपको झुटलाएं कि यहूदी आपको आपकी तकजीब करें, आपको झुटलाएं, और फकुल तो आप कह दीजिए रब्बुकुम जू रहमति वासिया, कि तुम्हारा रब इंतहाई रहमत वाला है। तो जू रहमतिन वासियतिन, इसका मतलब है कि इंतहाई रहमत वाला है। और इस टुकड़े का माना ये बनता है कि अल्लाह ताला आपको मुझे सब कुछ शौक दिला रहा है कि अल्लाह बड़ी रहमत वाला है और उसकी रहमत बड़ी वसी है। तो तुम शौक से आगे बढ़ो और उसकी रहमत को तलाश करने की कोशिश करो। और वला युरद्दु बासु अनिल कौमिल मुजरिमीन से मुराद है तरहीब। तरगीब का मतलब होता है किसी चीज का शौक पैदा करना। तरहीब का मतलब होता है किसी काम से डराना। ये रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, आपको ये मालूम है, आप एग्री करते हैं कि दुनिया की तमाम स्टेट्स में, तमाम कंट्रीज में प्रेज के लिए और आदमी की एनकरेजमेंट के लिए, उसकी तारीफ के लिए भी मेडल्स मौजूद हैं, और नाफरमानों के लिए जेलें भी मौजूद हैं, पनिशमेंट्स भी मौजूद हैं, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स मौजूद है जी। जी सर। जी बिल्कुल। ये अल्लाह ताला की कुरान मजीद का एक खास अंदाज है कि अल्लाह ना जिक्र कर देता है शौक को भी और साथ तरहीब को भी, कि आदमी को पता चल जाए कि ये शौक भी पैदा करे और अल्लाह के गजब से भी बचे। जैसे अल्लाह फरमाता है कि लाइन शकर तुम लाजीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे तो मैं बहुत ज्यादा दूंगा, ज्यादा कर दूंगा नेमतों को। वाइन कफर तुम, अगर तुमने कुफर किया वाइन अजाबी लशदीद, तो मेरा अजाब भी बड़ा सख्त है। इस तरह अल्लाह फरमाता है नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूर रहीम, मेरे बंदों को खबरदार कर दीजिए कि मैं बड़ा गफूर हूँ, बड़ा रहीम हूँ। व अन्ना अजाबी हुवल अजाबुल अलीम, लेकिन मेरा अजाब वो भी बड़ा खतरनाक है और बड़ा दर्दनाक है। और आपको ये भी मालूम है फिजिकली, अगर आप इसको समझे तो फिजिकली भी आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि एक चीज के अंदर, हम मिसाल नहीं बयान कर रहे, खाले के लिए मिसाल नहीं मैं बयान कर रहा, मैं सिर्फ समझाने की खातिर आपको ये बात गोशगुजार कर रहा हूँ कि जैसे बात चीजें हैं, जैसे आप सुई गैस को ले लीजिए कि आजकल बहुत ज्यादा इन है, और आप और हम सब लोग सुई गैस का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन आप बताइए सुई गैस नुकसानदेह भी हो जाती है कि नहीं? जी। जी सर, हो जाती है। किस तरह हो जाती है? सर जैसे अगर वो अगर उसको जलाया ना जाए और वो अपनी खाम हालत में हो, तो जी जी। उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसकी वजह से इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। बिल्कुल, इसका या मतलब है फिर कि ये हो आप, सकता हाँ है कि बिल्कुल, आग लग जाए। वेल एक्सप्लेन, और आपने बिल्कुल अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है कि वो कार्बन हाइड्रोजन का मुरक्कब होती है, कार्बन मोनो, कार्बन डाइऑक्साइड और इस तरह की चीजें उसके अंदर मौजूद है। अगर आप उसको लिट नहीं करते और वो जलती रहती है, जलती नहीं मतलब वो लीक हो जाती है,
कमरे में भर जाती है तो उसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो दम को घुट देते हैं और आदमी सोते हुए ही मौत हो जाता है, उसका सांस जो है वो बंद हो जाता है। हालांकि फायदा भी है, पेट्रोल का फायदा भी है, नुकसान भी। इसका असल मतलब ये हुआ कि आपने देखना है कि हम उसको रूल के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो अल्लाह रहमत है, अल्लाह ताला वसी है, उसकी रहमत किन के लिए, जो अच्छे काम करने वाले हैं। और अल्लाह का अजाब भी बड़ा सख्त है किन के लिए, जो अल्लाह ताला की इंस्ट्रक्शन पर अमल नहीं करते। आगे फरमाया सयकूल लजीना, अन करीब ये लोग कहेंगे जो लोग शिरक करते हैं। सयकूल लजीना अशरकू, अब ये आयत पहले भी आपने इससे मिलती जुलती आयत पढ़ी हुई है और मैं कोशिश करूंगा और एंगल से भी समझा दिया जाए। सयकूल लजीना अशरकू, अब मुशरिक आदमी दलील दे रहे हैं, लौ शा लौ मा अशरकना, अगर अल्लाह चाहता तो हम शिरक ना करते। अच्छा, ये वही वाला बहाना है जो मुशरिकीन ने या गलत काम करने वाले ने हमेशा इख्तियार किया होता है। चोर चोरी करता है, आप उसको कहते हैं चोरी क्यों की, तो वो कहता है कि अल्लाह की मर्जी थी। अब देखिए, अल्लाह ताला की मर्जी नहीं, ये मशीयत और रजा, इसका फर्क है। ये मैं दोबारा फिर एक कहूंगा, एक और एंगल से आपको समझा दूं, एक है अल्लाह ताला की मशीयत और एक है अल्लाह ताला की रजा। दोनों में फर्क है। ये आप दुनियावी तौर पर देख सकते हैं कि बर्फ और पानी में फर्क है। हालांकि आप बर्फ उसी पानी से आप बनाते हैं, जिस पानी को आपने ऊपर रख दिया तो वो बर्फ बन गया, कुछ पानी आपने नीचे फ्रिज में रखा वो सिर्फ ठंडा हो गया। अब आप बताइए दोनों में फर्क है या नहीं। यस सर। अब आपको पता है कि देर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर, यानी कि आप पानी को गर्म करते हैं, वो भाप बन जाता है, पानी उड़ जाता है, आपको भाप नजर आती है, फिर भाप से स्टीम इंजन बनता है, फिर वो गाड़ी को धकेलता है, गाड़ी चलती है, सारा आप जानते हैं। ये पुलिया जब इस्तेमाल किया था वो स्टीफनसन ने, कि उसने देखा कि मैं पानी को गर्म कर रहा हूँ, जब पानी गर्म हुआ उसमें से भाप उठी तो जो बर्तन का ऊपर वाला हिस्सा ना वो हिलना शुरू हो गया। तो उसको अंदाजा हुआ कि जब ये हिलना शुरू हो गया थर्मल एनर्जी की वजह से, तो इसका मतलब है कि इस पानी की तरफ ऐसी एनर्जी पैदा होगी जिसने उस ढक्कन को हिला दिया है। हाँ जी, एग्री जी। जी, नोट किया आपने कभी ये चीज? जी क्लास। सर सॉरी, आपका सवाल समझ नहीं आया मुझे। मैं ये कह रहा था कि जब आदमी, आपने देखा जब पानी भाप बनता है, पानी उबलता है, तो वो ऊपर पड़े हुए बर्तन को, जो उसके ऊपर आपने छोटा सा बर्तन रखा तो उसको हिला देता है, ये मैंने पूछा था। जी सर बिल्कुल। तो इसको, इसी को कहते हैं ना कि स्टीम इंजन इससे बना है कि इसके अंदर अब फर्क है। यानी कि पानी और चीज है, बर्फ और चीज है, भाप और चीज है। भाप जो है ना वो चीजों को हिलाती है, नीचे से ऊपर करती है तो वो हिलना शुरू हो जाती है। अच्छा, अल्लाह ताला की मशीयत और है, अल्लाह की रजा और है, ये हम मिक्स कर देते हैं अक्सर लोग। अब बताइए, अल्लाह की मशीयत का मतलब होता है कि अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ताला क्या चाहता है। तो आप बताइए, आप में से किसी को भी इल्म है कि अल्लाह क्या चाहता है? उसने कल क्या करना है, परसों क्या करना है, 3 दिन बाद क्या होगा, मुझे बता सकते हैं? नहीं सर, हम लोग नहीं बता सकते। आप नहीं बता सकते, कोई भी नहीं बता सकता, ये अल्लाह की मशीयत है। और अल्लाह ताला की रजा क्या है? अल्लाह ताला की रजा आप सबको पता है। आपको पता है कि अल्लाह ताला बदकारी करने से नाराज होता है या खुश होता है? सर नाराज होते हैं। नाराज होता है, बिल्कुल वेल सेड। चोरी करने से नाराज होता है, हरामकारी करने से नाराज होता है, सूद लेने देने से नाराज होता है, और अल्लाह ताला नमाज पढ़ने से राजी होता है। अब फर्क क्या है? अल्लाह की मशीयत, तो उसने दोपहर को क्या करना है, शाम को क्या करना है, आज रात क्या होगा, परसों रात क्या होगा, रात को कोई सितारा टूटेगा या जल्जला आ जाएगा या कोई सैलाब आ जाएगा, ये कोई नहीं जानता। लेकिन अल्लाह की रजा सारी जानते हैं। अल्लाह की मर्जी सबको पता है, सब मुसलमानों को, काफरों को, हिंदुओं, सिखों, सबको पता है कि अल्लाह इन कामों से राजी होता है और इनसे नाराज होता है। लिहाजा जब कोई आदमी चोरी करेगा तो हम उसे ये सीधा सा सवाल पूछेंगे, तो जो तूने चोरी की है, तुझे कन्फर्म है कि अल्लाह तुझे माफ कर देगा? तो अल्लाह तुझे पकड़ भी सकता है, तो लिहाजा तुझे कन्फर्म नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह की मशीयत में है कि अल्लाह ताला तुझे माफ करे या ना करे, ये तो अल्लाह की मशीयत है। हाँ, ये मैं तुम्हें लिख कर दे सकता हूँ कि अल्लाह तेरी चोरी से राजी नहीं है। सही बात समझ आ गई आपको? जी सर बिल्कुल समझ आ गई। आप देखें कि जब आदमी कोई ज़िना करता है, बदकारी करता है, शिरक करता है, और वो आपको शिरक करने के बाद, ज़िना करने के बाद, चोरी करने के बाद, बदकारी करने के बाद ये कह दे कि अल्लाह ताला की मर्जी है, अल्लाह अल्लाह ताला की, अल्लाह ने जो चाहा हमने किया, अल्लाह हमें माफ कर देगा, तो ये अल्लाह की मशीयत का बहाना है और अल्लाह की मशीयत उसको पता नहीं है।
बिल्कुल पता नहीं है। अल्लाह ताला की मशीयत उसको पता बिल्कुल नहीं है कि वो अल्लाह मुझे माफ करेगा या सजा देगा। लेकिन आप फौरन उसको पकड़ लें और ये कहें कि मुझे ये कन्फर्म है, मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़िना को हराम किया है और अल्लाह ताला ज़िना से नाराज होता है, इंतहाई नाराज होता है। तो ये मशीयत का बहाना बना रहे हैं मुशरिकीन कि अगर अल्लाह चाहता तो हम शिरक ना करते। जवाब इसका ये है कि अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई हुई है एक मकसद के लिए, और अल्लाह ने उस मकसद को पूरा करना और उस दुनिया को उस मुकाम तक ले जाना है जहां तक उसके सोचा हुआ है, जहां अल्लाह ताला की मशीयत है। लेकिन अल्लाह ने अपनी रजा के काम वो सब लोगों को बता दिए कि मैं इनसे नाराज होता हूँ, इनसे राजी होता हूँ। लिहाजा उनका ये बहाना बिल्कुल गलत है। अल्लाह ताला चाहे तो मुशरिक को फौरन पकड़ ले, लेकिन बाद औक़ात अल्लाह ताला उसको मोहलत देता है, उसकी कई हिकमतें हैं। बाद औक़ात मुशरिक आदमी को मोहलत मिलती है, बाद वो मोमिन बन जाता है, अल्लाह ताला के काम का बन जाता है। तो ये वही चीज है जो मशीयत और रजा में फर्क है। तो लिहाजा मशीयत और चीज है, रजा और चीज है। तो हमें क्या करना है, हमें अल्लाह की मशीयत का बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन अल्लाह की रजा का हमें इल्म है कि अल्लाह इन कामों से राजी होता है और इनसे नाराज होता है। तो वो कहा करते थे कि हम अगर अल्लाह चाहता तो हम शिरक ही ना करते, ना हमारे वाला आबाउना, ना हमारे बाप दादा शिरक करते, वाला हर्रमना मिन शैइन, ना हम किसी चीज को हराम करते। ये तो अल्लाह ताला की मर्जी है, नहीं अल्लाह ताला की मर्जी। तो ये मर्जी को मशीयत समझ लिया गया है, पानी को बर्फ समझ लिया गया है या पानी को भाप समझ लिया गया, फर्क वाज़ेह है। तो अल्लाह वहदहू ला शरीक ने कुरान मजीद के अंदर भी फरमाया कि इन तकफुरू फइन्नल्लाह गनियुन अन्कुम, कि अगर तुम कुफर करोगे तो अल्लाह ताला तो तुम्हारे कुफर से बेनियाज है। वला यरज़ा ली इबादिहिल कुफर, और अल्लाह अपने बंदों के लिए कुफर, कि वो कुफर इख्तियार करें, अल्लाह इससे राजी नहीं है। हाँ, वहीं तशकुरु यरज़हु लकुम, अगर वो तुम शुक्रगुजारी करोगे तो अल्लाह वहदहू ला शरीक उस शुक्रगुजारी को तुम्हारे लिए पसंद करता है। इस सूरह ज़ुमर है, आयत नंबर 7 है। तो लिहाजा ये जरूर ज़हन में रख लिया करें कि मशीयत और चीज है, रजा और चीज है। मशीयत का हमें बिल्कुल इल्म नहीं है, और रजा हमें पता है। रजा हमें पता है, कंफर्म है, 100% श्योर है, कुरान मजीद पूरा भरा हुआ है कि अल्लाह इन कामों से राजी होता है, इनसे नाराज होता है। जिन कामों से अल्लाह राजी होता है हम करेंगे, जिनसे नाराज होता है हम बिल्कुल नहीं करेंगे। और मशीयत का बहाना नहीं बनाएंगे कि अल्लाह ने चाहा तो हमने ये कर दिया। अल्लाह फरमाता है कज़ालिक कज़्ज़ब अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इसी तरह पहले लोगों ने भी झुठलाया। और अल्लाह की जो मशीयत है, मशीयत से क्या मुराद है कि जब कोई गलत काम करे तो वो कह रहा है कि अल्लाह तो खुश हो रहा है इस बात से। अल्लाह खुश नहीं हो रहा, अल्लाह ताला की मशीयत और चीज है, रजा और चीज है। और फरमाया कज़ालिक कज़्ज़ब अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इनसे पहले भी लोगों ने झुठलाया और क्या हुआ, हत्ता ज़ाक़ू बासना। अब यहाँ पर ये भी आप देख सकते हैं कि वो लिखा हुआ मुफस्सिर ने कि लुत्फ की बात ये है कि इंसान को मशीयत की बात उस वक्त याद आती है जब वो अल्लाह के हकूक को पामाल कर रहा हो। लेकिन जब उसके अपने को तलफ हो रहे हैं तो वो कभी मशीयत के उज़र को कबूल नहीं करता। मसलन किसी के घर चोरी हो या डाका पड़े तो वो कभी नहीं कहेगा कि चूंकि मशीयत ये थी इसलिए चोरी या डाकू का क्या कसूर है, और लिहाजा उसे कुछ नहीं कहना चाहिए। उसे उस वक्त वो इख्तियार आता है जो मुजरिम में जुर्म करते सवाल के, लिहाजा उसे जालिम समझता है और खुद समझता है। हालांकि मशीयत के ज़ाब्ते के मुताबिक उसे अपने आप को मजलूम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मशीयत ही ऐसी है। इससे और मजीद वाज़ेह होगी बात। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हत्ता अज़ाब को बासना, यहाँ तक कि उन्होंने हमारे अजाब को चख लिया। कुल हल इंतकुम, आप कह दीजिए इनके पास कि तुम्हारे पास मिन इल्म, को इल्म है, कोई दलील है, फतुखरिजूहु लना, तो निकालो उसको। यानी कि अगर तुम ये उज़र पेश कर रहे हो अल्लाह की मशीयत का, तो कहीं से कोई दलील लेकर आओ, कोई इल्म लेकर आओ कि अल्लाह ताला ने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि तुमने आइंदा ये करना है, या तुम्हें मालूम ही नहीं है कि तकदीर में क्या है। ये बहाना कि अल्लाह की मशीयत ये थी, कि तुम्हारा अपना जाती शाखसाना है, जाती नजरिया है, इस पर कोई दलील मौजूद नहीं है। उसको आप सूरह नजम की आयत नंबर 23, 24, 25, 26, 27, 28 में पढ़ सकते हैं। वहां पर भी इसको अल्लाह ताला ने बड़े तफसील के साथ बयान किया है। तो फरमाया इन तत्तबीऊन इल्ला ज़न्ना, ये तुम गुमान की पैरवी कर रहे हो। गुमान किस चीज का नाम है, अपनी मर्जी से, मतलब एक अटकल पच्चू लगाना, हिट एंड ट्रायल मेथड के 1 2 3 4 5 ये ठीक है, 1 2 3 4 5 तो वो ठीक है, कोई उस पर दलील कायम नहीं है। वही ना तुम इल्ला तखरुसून, तुम जन के पीछे हो, और जो बात है तुम्हारी बिला दलील है, इसकी कोई दलील नहीं है। और आज मैं इसको जरा दोबारा दोहरा दूं, अगर कोई आदमी आज आपसे ये कहता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बात मानो, अल्लाह के नबी के मुताबिक चलो अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और तुम कामयाब हो जाओगे, तो बताइए इस बात की दलील है? जी सर, कुरान की आयत इसकी दलील है। हाँ जी, इसका पूरा कुरान भरा हुआ है, माशाल्लाह पूरा कुरान भरा हुआ है। लेकिन अगर कोई आदमी ये कह दे कि तुम अल्लाह ताला की बात भी ना मानो, अल्लाह के रसूल की बात भी ना मानो, ये चूंकि अल्लाह की मशीयत ये है, तुम जो मर्जी करते रहो, चूंकि अल्लाह की मशीयत ये है, तुमने करना ही है, तो अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा, तो इसकी कोई दलील अल्लाह ने नाजिल नहीं फरमाई।
फरमाया कुल वलिल्लाहिल हुज्जतुल बालिगा, सारी हुज्जत बालिग है, जो सारी हुज्जत पूरी की पूरी है। बालिग आप समझते हैं नौजवान को कहते हैं, जब बालगा शुद्ध हो, जब आदमी नौजवान हो जाता है उसको बालिग कहा जाता है। और बालगा का मतलब होता है किसी जगह पहुंच जाना। तो ये इस माने में इस्तेमाल होता है कि जब कोई चीज मुकम्मल हो जाए। जैसे आप मकान देखते हैं, मकान का एक प्लॉट है, उसको मकान नहीं कहा जाता, उसके बाद उसकी दीवारें छतें बनती है, तब भी वो आप कहते हैं पूरी तरह नहीं बना। आप बनता तब है जब आपको उसकी चाबी दे दी जाती है कि ये फर्निश्ड घर है, अब आप चाबी लगाएं, और अंदर एसी भी लगा हुआ है और डीसी भी लगा हुआ है और कूलर भी लगे हुए हैं और ये जो गीजर वगैरह भी लगे हुए हैं, बेड आपके पीछे हुए हैं। तो अब आपको आपको मालूम होगा इस बात का, इस वक्त कई कंपनी ऐसी हैं जो आप पैसे देते हैं वो चाबी आपके हवाले करती हैं, दैट इज नोन एज फर्निश्ड हाउस। ऐसी है जी। जी सर। तो बालिगा कहते हैं जब चीज मुकम्मल हो जाए। तो फरमाया पूरी की पूरी हुज्जत वो अल्लाह ताला की है। मशीयत और चीज है, और जो अल्लाह ने तुम्हें इरादा और इख्तियार दिया वो और चीज है। किसी काम पे राजी होना अल्लाह का और चीज है, मशीयत उसकी और चीज है। और जो अल्लाह ने तुम्हें इख्तियार दिया हुआ है उसको अल्लाह की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करने से अल्लाह खुश होता है। जो इख्तियार तुम्हें दिया हुआ है अल्लाह की मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल करने से अल्लाह तुमसे नाराज। तो फरमाया फलौ शाह, और अगर वो चाहता लहदाकुम अजमईन, तो तुम सबको हदायत दे देता। अब साफ है कि जब आप, मैंने पहले भी आपको मिसाल में बयान किया था कि आप बच्चों का पेपर लेते हैं क्लास में, तो पहले आप 2-3 माह उनको पढ़ाते हैं, और उस पढ़ाई के दौरान हर चीज बराबर रखते हैं। आप हर आदमी को, चाहे वो बच्चा नालायक है चाहे लायक है, आप उसको एक जैसे नोट्स देते हैं, एक जैसी चीजें प्रोवाइड करते हैं। बेटा आपने इसको याद करना है, इसको याद करना है, यहाँ तक बराबर है। जब एग्जामिनेशन हॉल में आप बतौर मुम्तहिन खड़े होते हैं, तो फिर आपका कोई हक नहीं बनता कि आप तमाम बच्चों को बराबर करने के लिए उनको अपनी तरफ से बताते जाएं। मिसाल के तौर पर एक बच्चे ने खुद पूरा लिखा बिल्कुल दुरुस्त, उसके 100 में से 100 नंबर आ रहे हैं, आप उसका पेपर चेक कर रहे हैं कि जब वो कर रहा है, और साथ उसके दूसरा नालायक बच्चा बैठा हुआ है, उसको आपको नजर आ रहा है कि इसके 100 में 10 भी नहीं आ रहे। तो बताइए अकल और इंसाफ के मुताबिक जो बच्चा नालायक है और 100 में से सिर्फ 10 नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर रहा है, बाकी 90 उसको नहीं आता, तो उस क्लास में खड़े हुए मुमतहिन टीचर का ये हक बनता है कि उसको बाकी 90 जो मार्क्स है उसके सवालों के जवाब बता दे कि ना बताए। नहीं सर, इम्तिहान गाह में तो इस तरह नहीं करना चाहिए। इम्तिहान का इम्तिहान से इस तरह पहले नहीं होना चाहिए। ठीक है, होगा क्या, सारे बराबर हो जाएंगे। तो फायदे सब सारे बराबर हो जाएंगे, तो मेहनती आदमी कहेगा मेरी मेहनत का क्या फायदा, टीचर ने इसको भी बता दिया वो भी मेरे बराबर हो गया, तो मैं जो रातों को पढ़ता रहा। और आपको पता है इस तरह करने से जो मेहनती आदमी वो भी मेहनत छोड़ देगा, वो कहेगा टीचर ने बता ही देना। तो ये उस तरफ इशारा है कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो सबको हदायत दे देता, मगर फिर इम्तिहान का मकसद ही फौत हो जाता है, जन्नत जहन्नम का मकसद फौत हो जाता है। जन्नत जहन्नम का मकसद तभी है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक, वही एक तरह की, रसूल एक तरह की, रसूल एक तरह के, और शरीयत एक तरह की नाजिल फरमा दे। उसके बाद हर आदमी को पेपर दे दे कि तुमने पेपर इसके मुताबिक करना है। कोई 100 में से 100 ले लेगा और कोई 100 में से 10 ले लेगा। अब इस पर फैसला हो जाएगा क़यामत वाले दिन कि किस आदमी ने अल्लाह ताला के इख्तियार को सही इस्तेमाल किया है, किसने गलत इस्तेमाल किया है, क्योंकि नोट सबके पास एक जैसे हैं। फरमाया कुल हलुम शुहदाकुम, अल्लाह, अल्लाह फरमाता है कुल, आप कह दीजिए अपने गवाहों को लाओ, हलुम्मा लाओ, शुहदाकुम अपने गवाहों को, अल्लाज़ीना यशहदूना जो ये गवाही दे कि अन्नल्लाह हर्रम हाजा, कि अल्लाह ने इनको हराम कर दिया। ठीक है जी। सागर आपको पता है इस वक्त कुरान मजीद जो है, अब जिस तरह मैं जाती तौर पे बात कर रहा हूँ उसके बारे में हुकूमत लगी हुई है, सूद के खिलाफ रिट दायर की हुई है हुकूमत ने कि सूद को हराम ना करार दिया जाए। अब बताइए जो आदमी कहता है सूद हराम ना करार दिया जाए, उससे आप दलील का मुतालबा कर सकते हैं ना, कि आप बताइए कुरान मजीद में अल्लाह ने कहा सूद को हलाल किया है। हाँ जी, कुरान मजीद में अल्लाह ने कहीं सूद को हलाल किया है? नहीं सर। तो नहीं क्या सर। कहा है सूद के बारे में? हर्रम रिबा अल्लाह ने कहा है। अल्लाह ने ये बोला हर्रमा रिबा। अब साफ ज़ाहिर है हर्रमा रिबा को तो आप जगह जगह ढूंढ सकते हैं, जगह जगह लिखा हुआ हर्रमा रिबा, हर्रमा रिबा, हर्रमा रिबा, जगह जगह कुरान में मौजूद है, हदीस के अंदर मौजूद है। फ़इल लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। तो ये वही वाले मामूलात है जो इस वक्त हमारे मुल्क में या दाएं बाएं मौजूद है, कि हम भी अक्सर लोग यही कर रहे हैं कि अल्लाह ताला की हराम करदा चीजों को हलाल बना रहे हैं। उसकी कोई दलील नहीं है। अल्लाह ने फरमाया अगर ये हराम है बताओ उसकी दलील क्या है, वही लेकर आओ। फाइन शाहिद हो,
اور اگر وہ بھی گواہی دے دے فَإِن شَاهِدُوا، تو اللہ فرماتا ہے فلا تشہد، آپ گواہی نہ دیں معہم کے ساتھ گواہی، اگر یہ وہ پیسے کے لالچ میں، دولت کے لالچ میں آ کر گواہی دے بھی دیں اور وہ بھی جھوٹ بول دیں، تو آپ نے پھر بھی ان کے ساتھ گواہی نہیں دینی، کیونکہ آپ دین قیم پر ہیں اور دین قیم میں ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جمہوریت کا کوئی مذہب نہیں ہے، اصل مذہب جمہور کا، اکثریت کا نہیں ہے۔ مذہب دین اس آدمی کا ہے جو چاہے اکیلا ہو لیکن دلیل پر قائم ہو۔ میں اس کی مثال اس طرح دیا کرتا ہوں کہ ایک آدمی ہے، اس کے پاس 10 کروڑ روپے کے جعلی نوٹ موجود ہیں اور میرے پاس 10 روپے کا ایک نوٹ موجود ہے جو اصلی ہے۔ پھر سمجھ لیں کہ ایک آدمی کے پاس 10 کروڑ کے نوٹ ہیں مگر جعلی ہے، میرے پاس صرف 10 روپے کا ایک نوٹ ہے مگر اصلی ہے، بتائیے آپ کس سے پیسے لیں گے؟ سر جس کے پاس اصلی نوٹ ہوں گے وہی لیں گے، چاہے 10 روپے کا ہو تو آپ بالکل چاہے آپ 10 کا ہو۔ چاہے 10 کا، آپ کا اصلی ہے نا بھائی، یہ اصلی ہے، وہ نکلی ہے وہ تو 2 نمبر ہے، جعلی ہے۔ تو لہٰذا پوری دنیا بھی اگر غلط گواہی دے گئی اور وہ غلط گواہی قرآن مجید سے ثابت ہو جائے کہ غلط ہے اور پوری دنیا اس کی گواہی دے رہی ہو اور اس کے مقابلے میں صرف ایک آدمی قرآن کی بات کر رہا ہو، تو ہمارے اس میں فرض بنتا ہے کہ ہم اس ایک آدمی کے ساتھ ہوں جو قرآن کے مطابق بات کر رہا ہے۔ تو اس سے جمہوریت کی نفی ہو جاتی ہے، اکثریت کی نفی ہو جاتی ہے، مال کی نفی ہو جاتی ہے، میجورٹی کی نفی ہو جاتی ہے، اور مریض بار کی نفی ہو جاتی ہے، باس از آلویز رائٹ کی نفی ہو جاتی ہے۔ کوئی باس آلویز رائٹ نہیں ہوتا، کوئی منی پاور نہیں ہے اور کوئی میجورٹی اتھارٹی نہیں ہے۔ میجورٹی اتھارٹی پا نہیں سکتی، میجورٹی کے مقابلے میں ایک شخص کھڑا ہوا ہو ابراہیم علیہ السلام کی طرح، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ابراہیم کان امتا، کہ بے شک ابراہیم ایک امت تھے۔ امت کیا تھے؟ پورا محلہ، پورا شہر، پورا ملک جو ہے مشرکوں سے بھرا ہوا ہے اور اس کے مقابلے میں اللہ کی توحید پر صرف ایک شخص قائم ہے اور ان کا نام ہے ابراہیم علیہ السلام۔ اب آپ کلاس والوں سے بھی گزارش ہے وہ بتائیے کہ کون درست ہے، میجورٹی درست ہے یا ابراہیم علیہ السلام درست ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ کیونکہ اللہ ابراہیم علیہ دلیل قائم ہے، انہ کان صدیقا نبیا، اللہ فرماتا ہے کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم کو میں نے اپنا جگری دوست بنایا ہوا ہے۔ پھر فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب بھی میں نے ابراہیم کا امتحان لیا، ابراہیم نے اس کے اندر مکمل، نمایاں، واضح ڈسٹنکشن کے ساتھ کامیابی حاصل کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر ساری دنیا زنا کی گواہی دے دے، ساری دنیا سود کی گواہی دے دے، ساری دنیا بدکاری کی گواہی دے دے، ساری دنیا اگر گواہی دے دے کہ یہ چیز صحیح ہے اور قرآن و سنت اس کو غلط قرار دے رہے ہوں، تو آپ نے اس چیز کو صحیح قرار نہیں دینا، بلکہ قرآن و سنت کی بات مانتے ہوئے اس کی اتباع کرتے ہوئے آپ کہیں کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حرام ہے۔ آپ کو پتہ ہے خبیث زیادہ ہے آج کل، طیب کم ہے، آپ باہر نکلتے ہیں کس قدر فتنے موجود ہیں۔ قرآن جی اللہ نے واضح فرما دیا کل لا یستوی الخبیث والطیب، فرمایا خبیث گندی چیز اور طیب اچھی چیز دونوں برابر نہیں ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ولو اعجبک، اگرچہ آپ کو حیران کرتے کثرت الخبیث، خبیث چیز کی کثرت آپ کو چمبے میں ڈال دے، آپ کو حیران کر دے، تب بھی خبیث خبیث ہی ہے۔ واضح ہے جی بات؟ جی سر۔ اب دیکھیں آج کل کے دور میں میں دیکھتا ہوں کتنا جھوٹ کا دور دورہ ہے۔ اب صبح سے لے کے شام تک ہمارے ملک میں ڈرامے لگے ہوئے ہیں، 9 بجے کچھ اور ڈرامہ ہے، 10 بجے اور ہے، 12 بجے اور ہے، 1 بجے اور ہے، 3 بجے اور ہے۔ ایگری، آپ ڈرامے دکھا رہے ہیں، آپ فلمیں دکھا رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ تو بات ماننی پڑے گی نا، یہ تو دلیل کے تحت ماننی پڑے گی، یہ ڈرامہ اور فلم جھوٹ پر مبنی ہے، سچ پر مبنی نہیں ہے۔ ایگری جی؟ جی سر۔ بتائے جی، کلاس باقی کلاس نہیں بول رہی، وہ بھی بتائے۔ جی ہاں بالکل، اور بنی بنی اور مگر کبھی کبھار ٹرو سٹوری پہ بیسڈ ہو۔ نہیں وہ دیکھیں، میں اس وقت اس پہ بحث نہیں کر رہا۔ دیکھیں ٹرو سٹوری، میرے اوپر ایک سٹوری گزرتی ہے کہ میں اللہ نہ کرے بیمار ہو جاتا ہوں یا میرا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، تو میری سٹوری کو آپ کسی پہ تو اپلائی نہیں کر سکتے نا، کہ آپ کسی آدمی کو بلائیں اس کو میرا رول دے دیں، اور پھر کسی عورت کو بلائیں اس کو میری بیوی کا رول دے دیں، اور پھر کہیں کہ چونکہ عالم صاحب کے ساتھ یہ ٹرو سٹوری پیش آئی ہے لہٰذا آپ نے اس کو ایکٹ کر کے دکھانا ہے۔ تو آپ کو پتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جو میرے اوپر گزری ہے بتائیے ان پہ گزر سکتی ہے وہ بات؟ نہیں سر۔ نہیں سر۔ دیکھیے ہمیں ماننی پڑتی بات، آپ ان کو ایکٹ کروا رہے ہیں، چاہے آپ ٹرو سٹوری کو ہی فلمائز کروا رہے ہیں۔ ٹرو سٹوری میرے ساتھ پیش آئی،
آپ نے میرے پاس آگے پوچھا جناب علی کیا مسئلہ ہوا، میں نے آپ کو بتا دیا میرے ساتھ یہ مسئلہ، آپ نے میرے سے اسکرپٹ لیا، اسکرپٹ لینے کے بعد آپ نے اس کے ڈائلاگس بنائے، ڈائلاگس بنانے کے بعد سٹوری کے مطابق آپ نے اداکاروں کا چناؤ کیا، ایک کو میرا رول دے دیا، ایک کو میری وائف کا دے دیا، ایک کو میرے بچے کا دے دیا، آپ نے اس کی فلم، تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ کیفیت جو میری ہے وہ اس آدمی کی ہو ہی نہیں سکتی جو میری ایکٹ کر رہا ہے. کیا خیال ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈرامے اور فلمیں چونکہ زیادہ ہو گئے لہٰذا ڈرامے جو سچ ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں تو کبھی اس کو سچ نہیں کہوں گا، ہے تو وہ جھوٹ ہی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ ولا تتبع اهواء الذین کذبوا بآیاتنا، آپ نے ان لوگوں کی پیروی نہیں کرنی، ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی جنہوں نے میری آیات کو جھٹلایا. والذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور نہ ان لوگوں کی جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے. وہم بربہم یعدلون، اور دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ بات، اس بات کا حق دیتے ہیں کہ وہ بھی شریعت بنا سکتے ہیں، وہ بھی ہمارے مشکل کشاں ہیں، وہ بھی ہمارے پیشوا ہیں، وہ بھی جو اصول بنائے گے وہ اس طرح ہی ہے جس طرح نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے اصول بنایا ہوا ہے. جس طرح ریاستیں آج کل اصول بنا رہی ہیں، ریاستیں آپ کو پتہ ہے بل پاس کر رہی ہیں، ریاستیں آپ کو پتہ ہے کئی قسم کے گناہوں کے کاموں کے بل پاس کر رہی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ ہم بھی وہی کے مطابق، مطلب یہ کہ ہم بھی شریعت ساز ہیں. شریعت سازی کا حق صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے. 3 آیتیں سورہ مائدہ میں موجود ہیں اور وہ بڑی چونکا دینے والی ہیں. فرمایا من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون. جو شخص اللہ کی وحی کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے، فاسق ہے، ظالم ہے. کافر ہے، فاسق ہے، ظالم ہے. تو لہٰذا نہ کافر کی پیروی ہوگی، نہ ظالم کی پیروی ہوگی، نہ فاسق کی پیروی ہوگی. پیروی کس کی ہوگی؟ جس کے اندر ظلم بھی نہیں ہے، فسق بھی نہیں ہے، اور نہ اس کے اندر کسی قسم کا کفر موجود ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ وہ ہستی جو اپنی زبان سے کلام کرتی ہے اور اس کی زبان پہ صرف وہی آیا کرتی ہے، وہ صرف محمد وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. سورہ نجم میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے. تو لہٰذا ہم سب کے لیے فرض ہے کہ ہم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو، آپ کی بات کو، آپ کے اسوہ حسنہ کو، آپ کے طریقے کو، آپ کے ضابطے کو اپنا مانیں اور اس کے مطابق فیصلہ کریں. اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو ہے وہ آسمان سے برکات نازل فرما دے گا. اور میں قل تعالو آؤ، اب اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے، تعالو آؤ اب میرے پاس، اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہوں اس چیز کی جو اللہ نے تمہارے رب نے تم پر حرام. اگزامپل بڑی سمپل سی ہے. آپ دیکھیں آپ اپنا گھر ہے، آپ اپنے گھر کو حرام کر دیتے ہیں بعض لوگوں کے لیے کہ تم نے میرے گھر میں نہیں آنا، اجنبی ہے یہ کوئی اور آدمی ہے، اگر اس کا آپ کو اختیار حاصل ہے تو جو کائنات کا رب ہے اس کو بھی اختیار ہے کہ وہ جس چیز کو مرضی حرام کرے دے. اس طرح ہی اسٹیٹس کے اندر پروہیبٹڈ ایریاز ہوتے ہیں کہ نو باڈی کین انٹر دیٹ پروہیبٹڈ ایریاز. اس ممنوع علاقے میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا. اسٹیٹ نے پورا پیرا لگایا ہوتا ہے کہ وہاں پر کوئی داخلہ مطلب جائز نہیں ہے، ممنوع ہے، وہاں داخلہ نہیں ہو سکتا. بلکہ میں تو بعض بلڈنگ کے بارے میں دیکھتا ہوں تو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں کی کیمرہ گرافی یعنی کہ یہاں کی فلمی یعنی کہ کیمرے کی تصویر لینا وہ بھی درست نہیں ہے. یہاں پر کیمرے کے ذریعے تصویر لینا جرم ہے. ایگری جی؟ جی جی سر. سر. جتنی بھی آپ کی سینسٹیو جتنی بھی اپنا بلڈنگز ہیں اسٹیٹ ہماری کی، سینسٹیو بلڈنگ کے بعد لکھا ہوتا ہے کہ اس علاقے کی فوٹوگرافی منع ہے. فوٹوگرافی اس لیے منع ہے کہ وہ اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو حفاظت کے ساتھ رہنے کے لیے اس چیز کو لازمی قرار دیتی ہے کہ ہمارے سیکرٹس جو ہیں وہ دوسروں پر عیاں نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ جب چاہے جس چیز کو چاہے حرام کے دے. پہلی اللہ فرماتا ہے اللہ تشرکو، تم نے شرک نہیں کرنا. اور یہ آپ کو پتا تورات کے اندر بھی حکم موجود ہے، بائبل کے اندر بھی حکم موجود ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنے سے مراد ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی نیک آدمی کو، کسی آدمی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، نہ مخلوقات میں سے اور نہ جمادات میں سے. وہ چیزیں جو سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، آگ ہے اور یہ جانور ہے، ان کی پرستش کی گئی ہے. میں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا. اور ساتھ میں وہ بالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. تو یہ وہ چیزیں اللہ وحدہ لا شریک نے یہاں پہ فرمائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نہایت تاکید کے ساتھ جس کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے جی.
वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, और अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल ना करो। अगर तुम्हें मिल रहा है रिज़्क तो आपकी औलाद को नहीं मिलेगा। साफ ज़ाहिर है अल्लाह ताला औलाद को भी देने वाला है। और वालिदैन के साथ एहसान करने का आप पढ़ सकते हैं सूरह बनी इसराइल के अंदर आयत नंबर 23 के अंदर, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihsana, वहां भी ये लफ्ज मौजूद है। सूरह लुक़मान की आयत नंबर 14-15 के अंदर भी ये मौजूद है। और सिर्फ एक बात अल्लाह ताला ने वालिदैन की ना मानने को हुक्म दिया है, और वो क्या है? वो ये है कि वइन जा का आई, फरमाया अगर वो वालिदैन तुमसे झगड़ा करें, अंतुशरी का भी माँ लई सला का भी इल्मुन फला तुतिहुमा, अगर वो शिरक का हुक्म दे तो ये बात नहीं मानते। तो पैदा होने के बाद या माँ के पेट में हो, दवा दवा खिलाकर, जो ये हमारे यहाँ हमल को गिराया जाता है वालोकात, तो ये तमाम चीजें इसके अंदर मौजूद है। एक जगह लफ्ज है मिन इमलाक का, और सूरह बनी इसराइल में है खशियत इमलाक। यहाँ पर मिन इमलाक है, और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 31 में है खशियत इमलाक। इस तरह यहाँ पर है नहनु नर्जुकुकुम व इय्याहुम, और वहां वह है नहनु नर्जुकुहुम व इय्याहुम। तो इसका मतलब है कि यहाँ उन लोगों की बात हो रही जो मुफलिसी में गिरफ्तार है। फरमाया कि इस मुफलिसी में उन्हें कत्ल मत करो, हम मुफलिसी के बावजूद तुम्हें जो रोजी देते हैं उन्हें भी देंगे। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वालिद से आगे निकल जाता है बेटा रिज़्क के लिहाज से। एग्री है जी आप? जी सर। जैसे वालिद सारी उम्र साइकिल में होता है, बेटा माशाल्लाह जवान होता है, अल्लाह उसको गाड़ियां अता फरमा देता है। तो ये आपने सुना होगा, ये थॉमस माल्थस, ये बहुत बड़ा बरतानवी माशियात दान था। इसने नजरिया पेश किया था कि जो औलाद है, जो आबादी है, ये पैदा होती है ज्योमेट्रिकली 2004, 2008, 8, 2016, 16, 2032, 64, 128, 256 और 512, फिर 1024, फिर 2048, फिर 4096। ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, दिस इज नोन एज ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन इन मैथमेटिक्स, मल्टीप्लिकेशन करना। और एडिशन से आपको पता है कि चीजें कम रहती है, 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5। तो कहता है वो, उसने ये नजरिया पेश किया था कि जो वसाइल हैं वो अरिथमेटिकली बढ़ते हैं, और जो औलाद है या बच्चे हैं ये ज्योमेट्रिकली ग्रो करते हैं। लिहाजा एक वक्त आएगा कि जब चीजें कम पड़ जाएगी, आबादी ज्यादा हो जाएगी। और उसका ये नजरिया रद्द हो गया। एक सेंचुरी के अंदर अंदर ही आपको मानना पड़ेगा आज चीजें किस कदर ज्यादा है, किस कदर ज्यादा चीजें हैं कि बाजार में जाए तो आपको हर तरह की वैरायटी मिलेगी और ग्राहक नहीं मिलेगा। आप एग्री जी? जी सर, बिल्कुल नए नए तरीके भी आ गए हैं अपनी ये जो है फसलों को बढ़ाने के। जी जी तो बिल्कुल। उसके गलत हो गया, ठीक यानी कि आप अभी अभी मछली मार्केट चले जाएं, आपको लखों खा मछली नजर आएगी कि लेने वाला मौजूद नहीं, मछली वहां पर बैठी पड़ी हुई है। तो इसका मतलब है ये नजरिया बरतानिया ने इसको रद्द कर दिया। जहां तो वो आया था उसने रद्द कर दिया इस चीज को कि ये नजरिया मालसस का गलत है। अल्लाह फरमाता है कि हम तुम्हें भी रिज्क देते हैं और इनको भी रिज्क देते हैं। अच्छा, अब हमारे यहाँ थोड़े से नजरियात हमने देखने, आपने नजरियात शैतानी किसी सुने होंगे। वो शैतानी नजरिया आजकल भला के बना हुआ कि कंपैरिजन देखें नेकी का नेकी से, और उसमें आपने अपनी राय भी जरूर देनी है। वैसे कहा भला क्या जाता है, कहते हैं कि हज ना करो, हज ना करो, और फलां मुफलिस की फलां गरीब की मदद कर दो। ठीक है जी? उमरा ना करो, और फलां बच्चे की फलां बच्चे की मदद कर दो, फलां गरीब आदमी की मदद कर दो। हालांकि ये बात मेरा ख्याल है शैतान ने सुझाई है। कहना तो ये चाहिए था कि 2 करोड़ की 3 करोड़ की गाड़ी ना लो, गरीब की मदद कर दो। और ये जो मोबाइल तुमने लिया है 12 लाख का, 7 लाख का, ये मोबाइल ना लो, सादा मोबाइल लो, बाकी 10 लाख से गरीब की मदद कर दो। बताइए ये नजरिया क्यों नहीं पेश किया गया? है सर। ये अपनी मर्जी के खिलाफ है ना, अपने नफ्स के खिलाफ है। अब तक अंदाजा लगाएं कि नेकी का नेकी से तकाबल किया जा रहा है। वो नेकी फर्ज है, फॉर एग्जाम्पल, तो वो फर्ज करने के लिए जा रहा है, नेकी जो फर्ज है उसके जिम्मे वो हज करने के लिए जा रहा है, 10 लाख रुपए खर्च करके। उसको कहा जा रहा है अस्सलाम वालेकुम रुक जाओ, तुम गरीब की मदद कर दो, तुम्हारा यही हज हो जाएगा। तो कहना तो ये चाहिए था कि जो तुमने गाड़ी, पहले तुम्हारे पास गाड़ी 4 गाड़ियां, 5 गाड़ियां, 20 गाड़ियां मौजूद है, ये 22वीं गाड़ी ना लो, इससे गरीब की मदद कर दो। यानी कि शैतानी यहाँ तक पहुंच चुकी है। यहाँ पर भी वही हिसाब है कि अल्लाह ताला ने अगर हमें दिया है तो अल्लाह ताला हमारी औलाद को नहीं देगा। और अल्लाह ताला, अब हैरानी की बात यह है कि अगर अल्लाह ताला बच्चे को पेट देकर भेजता है तो पेट को भरने के लिए वसाइल भी देता है, जैसे कमाने के लिए 2 हाथ देता है और समझने के लिए ज़हन देता है।
और आपको पता है सारी कमाई ये हाथों की है, ये ज़हन की है। आदमी ज़हन से सोचता है, हाथों के जरिए कमा लेता है। हर आदमी आप देखते हैं मैक्सिमम यही होता है कि अपने हाथों की कमाई करता है। बताइए एक सर्जन है, दिल का ऑपरेशन करता है, वो किस चीज के पैसे लेता है, अपने हाथों के या नहीं? जी सर, इसी तरह जो इंजीनियर्स हैं वो सिर्फ अपने दिमाग की सोची हुई चीज के पैसे लेते हैं। आर्किटेक्ट दे ले, आर्किटेक्ट बैठा हुआ है, वो आपको डिजाइन करके देता है, उसके आपके लाखों रुपए ले लेते हैं नक्शे के। आप एक फुटबॉलर को देखते हैं, फुटबॉलर अपने पाँव को यूज करके दुनिया का अमीर तरीन शख्स बना हुआ है। तो अल्लाह ताला अगर पेड़ देता है तो क्या खाली पेड़ देकर भेजता है? बताइए। कि उसको वसाइल भी देता है, उसको हवासे खमसा भी देता है कि इस पेड़ को तुमने इसके जरिए भर लेना है। बताएं जी। सर अक्सरियत में तो सारी वसाइल साथ दे के भेजता है। अच्छा, दूसरे आप अपने जरा देखिए हुक्मरानों के हालात, कि हुक्मरानों की मराहत, उनको बिजली फ्री है, पानी फ्री है, गैस फ्री है, हर चीज फ्री है, और वो हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी लगा रहे हैं कि आप जनाब मनसूबाबंदी करें, खानदान को कम रखें, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये तमाम शैतानी नजरियात हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये तमाम चीजें गलत है। वलादत के नाम पर, खानदानी मनसूबाबंदी के नाम पर बड़े ही ऑर्गेनाइज तरीके से जो औलाद का जुर्म हो रहा है, कत्ले औलाद का, ये इंतहाई संगीन। यहाँ पर ये बात जरूर ज़हन में रखिए कि शरीयत जो है वो सख्ती का नाम नहीं है। अगर खामद और बीवी, जो एक कोई कपल है या कोई जोड़ा है, वो समझता है, खामद समझता है मेरी बीवी बीमार है या उसको कोई फिजिकल इश्यूज है, तो वो मनसूबाबंदी एक अलग चीज है। क्या वक्ती तौर पे एक प्लानिंग कर लें कि जो कि मेरी बीवी बीमार है, उस पर मुशक्कत होगी, दैट इज समथिंग डिफरेंट, यानी कि वो एक एक्सेप्शन डिफरेंट है। लेकिन असूल बना लिया जाए और उसको कौम पे लागू कर दिया जाए कि बच्चे जी वो दो ही अच्छे होंगे, और अगर दो अच्छे ना निकले फिर क्या बनेगा, ये भी एक सवाल बनता है। तो ये तमाम चीजें जो है ना, बड़ी अजीब है। दुनियावी तौर पे भी आप देखिए, आदमी दुनियावी चीजों पे ज्यादा की तरफ जाता है, 6 मकान हो, 8 मकान हो, 10 मकान हो। तो आपको पता है ह्यूमन रिसोर्सेज ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। और आप अगर इसको गौर से देखें ना, तो ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत बड़ा अल्लाह का फजल है, कि अगर कोई आदमी के पास ह्यूमन रिसोर्सेज बेहतरीन हो तो आपको वक्त से नजर आएगा कोई इंशाल्लाह कामयाब है, क्योंकि उसके पास ऐसे मैनेजर्स मौजूद हैं, ऐसे मजदूर मौजूद हैं जो बड़ी ईमानदारी से उसका काम कर रहे हैं। ये आपको एग्री होना पड़ेगा कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज है ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तो आगे फरमाया वला तकरबुल फवाहिश, और फवाहिश के करीब ना जाओ, मा ज़हरा मिनहा व मा बतन, जो जाहिर है जो छुपे हुए। और आपको पता है आजकल फवाहिश का तो दौर दौरा है। तो हमारे लिए तो बड़ा ये मतलब सोचने का मुकाम है और बड़ी तकलीफ दह बात है कि फवाहिश की कसरत इस कदर ज्यादा हो गई है कि संजीदगी और हया ये बिल्कुल खत्म हो गई है। इल्ला इल्ला माशाअल्लाह। हया को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, और संजीदगी को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। हर स्टेशन पे आप देखें कि जुगतबाजी, पकड़बाजी, जुमारी गुफ्तगू, और इसके साथ साथ फवाहिश की कसरत है। और किस कदर इजी एक्सेसिबल है आपके फवाहिश, आपके मोबाइल फोन के सिर्फ एक टिप के ऊपर है। और हर तरह का फोश काम जो है वो आप आगे हाथ में जो है उसकी एक्सेस में है। और ये किसने किया है? आपको पता है, ये उन लोगों ने किया है जो मुसलमानों में फवाशी फैलाना चाहते हैं। और बिला शक व शुबा इसमें सबसे बड़ा रोल यहूदियों का है, जिन्होंने अपने गमाशतों के जरिए मुसलमान मुआशरों में, जिस तरह अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू, फरमाया जो लोग ये पसंद करते हैं कि मुसलमानों में ये बेहयाई फैल जाए, उनके लिए दुनिया में भी अजाब है और आखिरत के अंदर भी अजाब है। अब आप बताइए, फहाशी के जराए ज्यादा हो चुके हैं कि नहीं? सर यस सर। बहुत ज्यादा हो गया। यस सर। बहुत ज्यादा। और आपको पता है बड़े टेक्निकल तरीके से, मिसाल के तौर पे आप बच्चों बच्चों का स्कूल ले लें, तो स्कूल के अंदर टैबलोज पेश किए जाते हैं, उसके अंदर बच्चियां डांस कर रही हैं, किसके नाम पर? जी, ये टैबलो है जी, और बच्चे डांस कर रहे हैं, क्या बात है। और डांस किस पे हो रहा है? फिर आप ये रोजाना कोई ना कोई खातून जो है मशहूर हो जाती है कि उसने फलां शादी में डांस किया, फलां निकाह में डांस किया, वो ये वायरल हो गई है, पूरी दुनिया में मशहूर हो गई है। और ये क्या चीज है बताइए? अगर इसको फहाशी नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा? और देखिए, गौर करें कि फहाशी को किस तरह प्रमोट किया जा रहा है, फहाशी को लाइक्स मिल रहे हैं। और गौर करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बफर्ज महाल इस वक्त पाकिस्तान में आ जाए तो पाकिस्तान में रहना गवारा करेंगे नबी अलैहिस्सलाम? बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। सर, सवाल ही नहीं पैदा हमारे होता। तो जो उल्मा वगैरह बाहर के ममालिक में हैं वो ही पाकिस्तान आना पसंद नहीं करते।
وہ یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کو جو ہم سمجھتے ہیں کہ اسلامی مملکت ہے وہ تو بالکل بھی نہیں ہے. جی جی تو بالکل. ابھی اچھا ایک دوسری بات ایک اور المیہ یہ ہے کہ ایک ہے فحاشی کو فحاشی سمجھنا اور ایک ہے فحاشی کو پروٹیکٹ کرنا. میں نے اندازہ نہیں لگایا ٹائم بہرحال میرا خیال ہو گیا ہے. اس آیت کو ہم اگلے لیکچر میں اگلے لیکچر میں بڑا امپورٹنٹ لیکچر ہے جی, تھوڑا سا شاید لمبا بھی ہو, تو سب سے گزارش ہے کہ وہ اگلا لیکچر بالکل مس نہ کریں, کیونکہ اس لیکچر میں نہ صرف آپ کی مکمل ہوگی بلکہ اس کے ساتھ ہم نا اپنے فائنل ٹرم کے بارے میں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ڈسکس کریں گے. تو اگلا لیکچر کوئی بھی اسٹوڈنٹ مس نہ کرے. تو مجھے اندازہ نہیں ہوا اگلی کلاس اصل میں شروع ہونے والی ہے, کچھ اس پہ ٹائم ہمارا زیادہ لگ گیا. انشاءاللہ جتنی آیت ہم نے پڑھی ہے یہاں تک, یہاں سے ہم فوائد سے اگلے لیکچر میں آغاز کریں گے.